Today lecture is about physicochemical properties including hydrogen ion concentration, acid base, pH and buffer systems. Firstly, we should all know about what is hydrogen ion concentration before discussing about hydrogen bonding, pH and buffer. Hydrogen ion concentration, we can understand it very well through the example of water. Water possesses hydrogen bonding. Hydrogen bonding is a bond between two molecules resulting from an electrostatic interaction between a proton in one molecule and an electrostatic atom in the other. For example, water possesses hydrogen bonding between hydrogen and oxygen. Okay, and water being most abundant substance in human body, making 65 to 70% of body mass, it possesses hydrogen bonding, producing great internal cohesive forces, make water liquid at room temperature. Cohesive forces are basically the forces between same atoms. You can between atoms, molecules have same type, and adhesive forces are those between those molecules that possess different molecules. They have different properties. Beside it, it also possesses viscosity and surface tension of water. At 25 degrees centigrade, only one of every 10 to 7 molecules in pure water is ionized. Basically, water possesses hydrogen ion and hydroxyl ion. When और जब डिसोसिएट भी होता है वाटर तो हाइड्रोजन और हाइड्रोक्सल आयन पे डिसोसिएट होता है. ये रिवर्सिबल रिएक्शन होता है और ये हाइड्रोजन आयन और हाइड्रोक्सल आयन जो है वो सेम कंसंट्रेशन में अवेलेबल होते हैं वाटर में. Ionic product of water is basically the product of hydrogen and hydroxyl ion at a particular temperature in a pure water molecule. It is represented as Kw and it depends on the temperature of the environment. Every 1 degree rise in temperature leads to increase 8% in ionic product of water. At 25 degrees Celsius, the value of ionic product of water is 10 to raised power minus 14 and that is the constant value. In previous slide, I will explain the hydrogen and hydroxyl ion concentration remains same. So, if the product of hydrogen and hydroxyl ion concentration is 10 to raised to power minus 14, and so we can say the hydrogen ion concentration will be 10 to raised to power minus 7, and similarly hydroxyl ion concentration is 10 to raised to power minus 17 and their product will make up 10 to raised to power minus 14. This is the way to represent the hydrogen and hydroxyl ion concentration in the water. And if we talk about the concept of acid and bases, so the general definition of acid is release proton and the basis is accept proton. वो एसिड उसमें ज़्यादा स्ट्रॉन्ग एसिड होंगे जिनमें ज़्यादा कैपेबिलिटी होगी हाइड्रोजन आयन या प्रोटॉन्स डोनेट करने की, और वो बेसिस स्ट्रॉन्ग बेसिस होंगी जिनमें ज़्यादा एबिलिटी होगी कि वो एक्सेप्ट कर सके हाइड्रोजन आयन को. इसी बेस पे हम क्लासीफाई करते हैं एसिड एंड बेस की स्ट्रॉन्गनेस को. So, hydrogen ion concentration is very much involved in determination of pH. Sorensen is the scientist who suggests that the exponent of hydrogen ion concentration with its negative sign changed to positive, we term pH, and should be used the expressing hydrogen ion concentration. The symbol P denotes negative logarithm of and means that negative log of base 10 of the quantity of hydrogen ion is employed and not the quantity of hydrogen ion itself. Basically, the formula of pH is minus log of hydrogen ion concentration.
सो वो यही बताना चाह रहा है कि सिर्फ हाइड्रोजन आयन की कंसंट्रेशन जो है उसको हम pH नहीं कह सकते। अगर हम उसका नेगेटिव लॉग लेंगे बेस 10 का तो वो जो है वो pH होगी। दिस इन्वॉल्व टेकिंग द लॉग ऑफ हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन एंड चेंजिंग इट्स साइन। अगर हम बात करें कि माइनस लॉग ऑफ हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन, तो अगर हम बात करें अगर हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन वाटर की फॉर्म में 10⁻⁻7 है और अगर हम वाटर की pH की बात करेंगे तो हम कहेंगे माइनस लॉग 10⁻⁻7। सो जो -7 है वो पॉजिटिव हो जाएगा और जो pH आएगी अगर हम लॉग लेंगे ना 10⁻⁻7 का बेस 10 पे तो वो -7 आएगा। ओके, सो माइनस माइनस जो है वो प्लस हो जाएंगे और जो pH होगी वाटर की वो आएगी 7 जो कि है न्यूट्रल। According to this concept, water which has 10⁻⁻7 gram hydrogen per liter will have a pH equal to 7. This expression is the result of the fact that -7 is the log of 10⁻⁻7 and after changing its sign it becomes 7, which is therefore the pH of water. As water is neutral, pH 7 represents neutrality. It is obvious that gram hydrogen ion present per liter of water multiplied by with gram hydroxyl ion of liter of water is always equal to 10⁻⁻14. Except pH, there is a value is POH. ठीक है, हम pH जो है वो हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन से डिटरमिन करते हैं और POH हम हाइड्रोक्सल आयन कंसंट्रेशन से फाइंड करते हैं इन द सेम वे। अगर कोई आपको कहे कि वाटर की pOH डिटर्मिन करें तो फिर भी आप जो OH की वैल्यू होती है जो कि हमारे पास वाटर की केस में 10⁻⁻7 ही है तो उसकी pOH भी 7 ही आएगी। और अगर हम वाटर की pH की बात करेंगे तो भी हाइड्रोजन आयन की कंसंट्रेशन 10⁻⁻7 होती है तो वो pH जो है वो 7 आएगी क्योंकि वाटर एक का न्यूट्रल सब्सटेंस है। ठीक है, अब इस टेबल में आपको डिफरेंट चीज़ों की जो है वो नॉर्मल ब्लड गैस वैल्यूज दी गई है डिटर्मिन करने के लिए pH। अगर वो 7 से एक्सीड कर रही हैं तो वो अल्कलाइन है, अगर वो 7 से बिलो है तो वो एसिडिक में आती हैं और ये जो 7 है ये बीइंग न्यूट्रल वर्क करता है। अब जो एसिड बेस की हम बात कर रहे हैं उसकी रेगुलेशन होती है हमारी बॉडी में। ठीक है, अगर ज़्यादा एसिडिक इन्वायरमेंट होगा हमारी बॉडी में तो भी वो हमारे लिए बैड इफेक्ट देगा, ज़्यादा अल्कलाइन होगा तो भी वो कुछ हेल्थ इश्यूज़ या हेल्थ प्रॉब्लम कोज करेगा। तो हमारी बॉडी में कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो इस एसिड बेस रेगुलेशन को बैलेंस करती हैं। उनमें एक हमारे पास है बफर सिस्टम, एक होती है रेस्पिरेटरी रेगुलेशन, एक होती है हमारे पास रीनल रेगुलेशन। सो वाई टू रेगुलेट, मैंने आपको पहले भी बताया कि अगर हम इस रेगुलेशन को मतलब अगर हमारी रेगुलेट हो रही है एसिड बेस की वैल्यूज़ और हमारी जो नॉर्मल वैल्यू नहीं रह रही तो वो कुछ हेल्थ इश्यूज इम्पोज करेगी। एक तो वो हमारा होम्योस्टेसिस मेंटेन नहीं होने देगी, दूसरा वो हमारे जो हमारे इंजाइम होते हैं वो स्पेसिफिक टेम्परेचर स्पेसिफिक pH पे वर्क करते हैं। तो अगर इस एसिड बेस में फ़र्क आएगा तो ऑब्वियसली pH में डिफरेंस आएगा, ऑब्वियसली इंजाइम के फंक्शन में परफॉर्मेंस में एरर आएगा जिसकी वजह से हमारी बॉडी का जो सब फंक्शन है वो शट डाउन हो जाएगी। तो ऑप्टिमम pH ऑप्टिमम टेम्परेचर मेंटेन करने के लिए हमें इन चीज़ों को रेगुलेट करना पड़ता है। सो व्हाट इज़ बफर? बफर इज़ बेसिकली वन ऑफ दैट सोल्यूशन दैट टेंड्स टू मेंटेन pH when small amount of acid or base added to it. A buffer solution consists of a weakly dissociating acid and its conjugate base or the salt, जिसमें एबिलिटी होती है कि वो प्रोटोन एक्सेप्ट कर सके और जो हमारे पास वीकली डिसोसिएटिंग एसिड होता है वो डोनर होता है। ठीक है, बेसिकली जो बफर का काम होता है वो हमारी pH को मेंटेन करने का काम होता है और अगर उसमें कुछ ऊपर नीचे हो गया है तो उसको मेंटेन करना है बैक और उसको लाना है ऑप्टिमल वैल्यू पे बाय एडिशन और रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन आयन। तो अगर हम हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन हम बात कर रहे हैं कि हम बफर मेंटेन करते हैं बाय एडिंग और रिमूविंग हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन,
तो क्या होता है कि जब हम हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन इंक्रीज करते हैं या डिक्रीज करते हैं, बेसिकली ये इफेक्ट कर रहे होते हैं पीएच पे। एसिड आर केमिकल्स विच ऑन डिसोसिएशन सप्लाई द पॉजिटिव चार्ज हाइड्रोजन आयन, while bases are chemical which tends to take up hydrogen ion. Strong acid and bases are almost completely ionized and dissociated in water, but weak acid and weak bases are only partially dissociated in water. The degree of dissociation determines the strength of acid or bases. जितने ज़्यादा वाटर में जो एसिड स्ट्रॉन्ग एसिड होता है ना, वो रेडिली डिसोसिएट हो जाता है अपने आइंस में, जो डिवाइड हो जाता है वाटर के अंदर। लेकिन अगर कोई वीक बेस और एसिड है तो वो रेडिली डिसोसिएट नहीं होता, वो पार्शली डिसोसिएट होता है, पार्शली अपनी रियल स्टेट में रहता है। इसकी वजह से हम डिटर्मिन कर सकते हैं एसिड की स्ट्रेंथ, कि वो एसिड या बेस की स्ट्रेंथ, कि वो कितना एसिडिक है और कितना बेसिक है। अगर हम बात करें कि हम एक एसिड को ऐड करते हैं वाटर में, ठीक है, हम एसिड की कंसंट्रेशन इंक्रीज कर रहे हैं, तो it can be seen that on adding an acid to water, the amount of hydrogen ions will increase. Suppose it increase from 10 to raise to power -7. हम बात कर रहे हैं नॉर्मल एक आइडियल सिचुएशन की, जिसमें 25 डिग्री सेल्सियस पे हाइड्रोजन आयन की कंसनट्रेशन 10 to raise to power -7 है। हम कह रहे हैं हमने उसमें एसिड ऐड किया है। जब एसिड ऐड किया है तो वो डिसोसिएट हुआ है, उसमें हाइड्रोजन आयन कंसनट्रेशन इंक्रीज कर गई है। अब आपको पता है जो नेगेटिव वैल्यू जितनी ज़्यादा बड़ी होती है वो छोटी होती है, ठीक है। तो जो स्केल है वो शिफ्ट करेगा, से हम कहते हैं वो 10 to raise to power -4 हो गई है, ठीक है। अब हम इसका पीएच लेंगे अगर माइनस लोग हाइड्रोजन आयन, तो माइनस लोग 10 to raise to power -4, 10 to raise to power -4 का लोग आएगा -4, माइनस माइनस प्लस होता है तो वो हो जाएगा प्लस, पीएच हो जाएगी 4। अब आपको नज़र आ रहा है कि जो पीएच है वो 7 से, क्योंकि वाटर की पीएच 7 थी, हमने उसमें एसिड ऐड किया है, वो हो गई है 4। तो इससे ये पता चलता है कि जब हम किसी भी वाटर में एसिड ऐड करते हैं, हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन किसी भी सोल्यूशन में इंक्रीज करते हैं, तो जो रिएक्शन है वो टुवर्ड्स शिफ्ट करता है राइट, ठीक है। मतलब उसकी पीएच जो है वो हो जाती है डिक्रीज और उसकी हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन हो जाती है इंक्रीज, ठीक है। इसी तरह अगर हम उसकी हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन डिक्रीज करते हैं तो रिएक्शन टुवर्ड्स लेफ्ट वेरी करता है। फॉर एग्जांपल हमारे पास थी 10 to raise to power -5, हमने उसमें एसिड ऐड किया, वो हो गई 10 to raise to power -7। तो जो हमारी एसिडिटी थी वो अल्कलिनिटी की तरफ जाना शुरू हो जाती है, ठीक है। पहले पीएच 5 थी, फिर 7 होना शुरू हो जाती है, ठीक है। तो इस चीज़ का आपने ख्याल रखना है कि जब हम किसी चीज़ में एसिड ऐड करते हैं तो वो अपने हाइड्रोजन आयन डिसोसिएट करना शुरू कर देता है। अगर हम हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन इंक्रीज करेंगे तो पीएच डिक्रीज होगी, अगर हम हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन डिक्रीज करेंगे तो पीएच इंक्रीज होगी। सेम इज़ द प्रोसेस फॉर बेस। अगर हम किसी भी सपोज वाटर सोल्यूशन में ही बेस ऐड कर देते हैं तो जो बेस है वो एक्सेप्ट करना शुरू करती है अपने हाइड्रोजन आयन को, ठीक है। तो हम उसकी POH फाइंड करेंगे, ठीक है। अगर हम किसी भी सोल्यूशन में बेस ऐड कर रहे हैं तो हम उसकी POH कैलकुलेट करते हैं, pH कैलकुलेट नहीं करते। और जो POH का फार्मूला है वो माइनस लॉग हाइड्रोक्सल आयन कंसंट्रेशन होता है, ठीक है। तो जब हम POH फाइंड करेंगे तो हम उसमें बेस ऐड करेंगे, तो जो हाइड्रोक्सल आयन कंसंट्रेशन है अगर इंक्रीज हो रही है तो जो pH है वो जाएगी POA जो है वो इंक्रीज करे, ठीक है। और अगर हम हाइड्रोक्सल आयन कंसंट्रेशन जो है वो डिक्रीज कर रहे हैं तो जो रिएक्शन है वो टुवर्ड्स राइट शिफ्ट कर देगा, ठीक है। ये एक दूसरे के ऑपोजिट वर्क करते हैं। नाउ देयर आर डिफरेंट टाइप ऑफ बफर जो रेगुलेट करते हैं हमारी बॉडी में पीएच को, या हमारे सिस्टम में लेबोरेटरीज में। इसमें हमारे पास आते हैं कार्बोनिक एसिड बफर्स, प्रोटीन बफर्स, माइनर बफर्स, जिसमें हमारे पास फॉस्फेट बफर्स आते हैं। इसके अलावा हीमोग्लोबिन बफर भी है।
अगर हम अपने बॉडी फ्लूइड्स की बात करें तो हमारे पास होता है इंट्रासेलुलर फ्लूइड और एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड। जो इंट्रासेलुलर फ्लूइड में बफर काम कर रहे हैं उसमें हमारे पास फॉस्फेट बफर आता है और प्रोटीन बफर आता है, ठीक है। प्रोटीन बफर अगर फर्दर डिवाइड है अमाइनो एसिड में और हीमोग्लोबिन बफर सिस्टम में। अगर हम एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड की बात करें तो उसमें भी दो तरह के बफर आते हैं। प्रोटीन बफर सिस्टम जो है वो एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड में भी होता है, इंट्रासेलुलर फ्लूइड में भी होता है। इसके अलावा एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड में हमारे पास कार्बोनिक एसिड बाइकार्बोनेट बफर सिस्टम होता है। Firstly, we will talk about buffer system called carbonic acid bicarbonate buffer. Carbonic acid bicarbonate buffer is most related to respiratory system. Whenever there is plenty of carbon dioxide exhale करते हैं हम जब लंग्स, तो जो वाटर के साथ कंबाइन करके कार्बोनिक एसिड की सिंथेसिस होती है, ठीक है। तो कार्बोनिक एसिड जो है वो रेडिली डिसोसिएट हो जाता है हाइड्रोजन आयन में और बाइकार्बोनेट आयन में। व्हेनेवर जब ऐसा हो कि कार्बोनिक एसिड की डेफिशिएंसी हो तो हमारे पास सोडियम बाइकार्बोनेट जो है वो एज अ रिजर्व प्रेजेंट होता है, जो अपना बाइकार्बोनेट आयन देते हैं और वो हाइड्रोजन आयन के साथ कंबाइन करके इंक्रीज कर देते हैं कार्बोनिक एसिड को और इक्विलिब्रियम मेंटेन रहता है। तो यहाँ पे जो सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट या सोडियम बाइकार्बोनेट है वो एज अ बफर वर्क कर रहा है, जो कि नॉर्मलाइज करता है हमारे कार्बोनेट बाइकार्बोनेट बफर सिस्टम को, ताकि नॉर्मली जो रेस्पिरेटरी सिस्टम है वो वर्क करता रहे अपने इक्विलिब्रियम पे। देयर आर सम लिमिटेशंस टू बाइकार्बोनेट बफर के एक तो ये जो ECF है, जो हमारा एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड है, उसकी pH को मेंटेन नहीं कर पाता क्योंकि कार्बन डाइऑक्साइड के लेवल जो है वो बहुत ज़्यादा इंक्रीज और डिक्रीज हो रहे होते हैं, ठीक है। उनमें फ्लक्चुएशन बहुत ज़्यादा हो रही होती है। दूसरा, अगर हमारा रेस्पिरेटरी सिस्टम एफिशिएंटली वर्क कर रहा है और अदर वाइटल्स एफिशिएंटली वर्क कर रहे हैं तो ये बफर जो है वो मेंटेन रहता है। थर्डली, इसमें बाइकार्बोनेट के रिजर्व होना ज़रूरी है। जो सोडियम बाइकार्बोनेट की हम बात कर रहे थे, अगर उसकी अवेलेबिलिटी नहीं होगी, ये डिपेंड कर रहा है उसकी अवेलेबिलिटी पे, अगर वो अवेलेबल नहीं होगा तो ये बफर जो है वो अपना इक्विलिब्रियम मेंटेन नहीं कर पाएगा। द नेक्स्ट buffer system is phosphate buffer system. This buffer system belongs to intercellular fluid and tubular fluid, basically renal tubular fluid. The main element of the phosphate buffer system are hydrogen phosphate and HPO4. When a strong acid such as HCl is added to a mixture of these two substances, the hydrogen is accepted by HPO4 जो कि थी बेस, और वो कन्वर्ट हो जाती है H2PO4 में, जो कि है एक एसिड। तो जब हम एक स्ट्रॉन्ग एसिड HCl ऐड करते हैं और वो कन्वर्ट हो जाता है एक वीक एसिड में, तो जो सिस्टम है उसकी जो pH है वो डिक्रीज हो जाती है, ठीक है। बफर का सिस्टम, बफर की बेसिक डेफिनेशन यही थी ना कि वीक एसिड विद वीक बेस। तो जब हम कोई स्ट्रॉन्ग एसिड ऐड करते हैं और वो जो सिस्टम की जो pH है उसको कम कर दे, वो एक वीक एसिड में कन्वर्ट हो जाए, तो जो हमने तो HCl इसलिए डाला क्योंकि वो स्ट्रॉन्ग एसिड था, pH जो है वो इंक्रीज करनी चाहिए थी, मतलब हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन इंक्रीज करनी चाहिए थी, लेकिन वो कन्वर्ट हो गई एक वीक एसिड में, जिसकी वजह से pH जो है वो डिक्रीज हो गई। इसी तरह अगर हम एक स्ट्रॉन्ग बेस ऐड करते हैं इसी सोल्यूशन में जिसमें H2PO4 और HPO4 था, तो जो बफर सिस्टम में हमने बेस ऐड की NaOH, जो कि एक स्ट्रॉन्ग बेस है, तो जो OH इज बफर्ड बाय H2PO4, ठीक है, तो फॉर्म एडिशनल अमाउंट ऑफ HPO4. इन दिस केस अ स्ट्रॉन्ग बेस इज टारगेटेड फॉर अ वीक बेस NH2PO4 causing only a slight decrease in pH. हम तो इंक्रीज इन pH। HCl की केस में जब हम एक स्ट्रॉन्ग एसिड ऐड कर रहे हैं तो हम कहेंगे कि एकदम जो है वो जो pH है वो डिक्रीज करनी चाहिए, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल pH पहले 4 थी तो वो 2 पे चली जानी चाहिए क्योंकि हमने एक स्ट्रॉन्ग एसिड ऐड कर दिया। HCl इज स्ट्रॉन्ग एसिड, तो एकदम से हाइड्रोजन आयन डिसोसिएट हुए होंगे, एकदम से pH जो है वो डिक्रीज हो गई होगी, लेकिन ऐसा नहीं होता। यही काम जो है वो बफर सिस्टम करता है। बफर सिस्टम क्या करता है, वो मिनिमम रेंज में pH को जो है वो मेनटेन करता है, ठीक है। तो जब एक स्ट्रॉन्ग एसिड जो वीक एसिड में कन्वर्ट हो जाता है तो जो pH है वो स्लाइटली डिक्रीज करती है। इसी तरह अगर हम स्ट्रॉन्ग बेस की बात करें, सोडियम हाइड्रोक्साइड स्ट्रॉन्ग बेस है,
तो जब हमने उसको सोल्यूशन में ऐड किया तो पीएच जो है वो एकदम से इंक्रीज कर जानी चाहिए थी। सपोज अगर 8 थी तो वो 12 हो जानी चाहिए थी, लेकिन क्योंकि वो जो स्ट्रॉन्ग बेस हमने ऐड की थी वो वीक बेस में कन्वर्ट हो जाती है, तो बहुत ही स्लाइटली चेंज आता है पीएच में, और ये सब कौन कर रहा होता है, ये जो हमारी बॉडी में फॉस्फेट बफर था वो कर रहा होता है। और ये इम्पोर्टेंट है स्पेशली किडनी फ्लूइड्स के लिए फॉर 2 रीज़न। एक तो फॉस्फेट यूजली बिकम ग्रेटली कंसनट्रेटेड इन द ट्यूब्यूल, देयर बाय इंक्रीजिंग द बफरिंग पावर ऑफ फॉस्फेट बफर, एंड सेकेंड इज द ट्यूबुलर फ्लूइड यूजली हैज अ कंसिडरेबली लो पीएच देन एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड डज, ब्रिंगिंग द ऑपरेटिंग रेंज ऑफ बफर क्लोजर टू पीके 6.8। हमारे जो बॉडी फ्लूइड्स की नॉर्मल पीएच होती है वो 7.4 होती है। आप कहते हैं ब्लड की जो पीएच है वो 7.4 है। तो जो हमारे बफर होते हैं वो उनको मिनिमम डेविएट करने देते हैं और उनको वो 7.4 के करीब ही रेंज में रखते हैं, ताकि जो पीएच है वो ज़्यादा डेविएट ना करे और जो प्रॉब्लम कॉज ना करे। Next is protein buffer system. Proteins are made up of amino acid, and you all know the structure of amino acid. It contain one carboxylic group, one amino group, a hydrogen atom, and an R group containing any functional group. अब जो कार्बोक्सिलिक ग्रुप और अमाइनो ग्रुप प्रेजेंट हैं अमाइनो एसिड के स्ट्रक्चर में, वो रिस्पॉन्सिबल हैं और वो पोटेंट है बफर्स के तौर पे। कार्बोक्सिलिक ग्रुप जो है वो अटैच होता है अमाइनो एसिड के सेंट्रल कार्बन के साथ, ठीक है। और कार्बोक्सिलिक ग्रुप कंसिस्ट ऑफ अ डबल बॉन्ड टू द वन ऑक्सीजन एंड अ सिंगल बॉन्ड टू द हाइड्रोक्सिल ग्रुप। अगर पीएच न्यूट्रल होती है अमाइनो एसिड की तो हम उसको रिप्रेजेंट करते हैं C डबल नेगेटिव, कि मतलब उसने अपना हाइड्रोजन आयन जो है उसमें कैपेबिलिटी है डोनेट करने की, ठीक है। एसिडिक मीडियम होगा तो वो COOH बन जाएगा क्योंकि एसिड आ गया है और उसने अपना हाइड्रोजन जो है वो COO को दे दिया। अगर बेसिक मीडियम है तो वो COO नेगेटिव बन जाएगा, अपना हाइड्रोजन आयन उसने किसी बेस को दे दिया। सेम इन द केस ऑफ अमाइनो ग्रुप भी सेंट्रल कार्बन के साथ अटैच होता है। अगर वो न्यूट्रल पीएच पे प्रेजेंट है तो वो इन द फॉर्म ऑफ अमोनियम आयन प्रेजेंट होगा रेदर देन जस्ट NH2। और अगर वो एसिडिक मीडियम में है तो वो NH3 बन जाएगा क्योंकि उसके पास जो है वो हाइड्रोजन आयन आ चुका है, ठीक है। और अगर वो बेसिक मीडियम है तो वो बिकम हो जाएगा NH2 के, उसमें कैपेबिलिटी है कि वो एक्सेप्ट कर सकता है। व्हाट इफ़ अगर एसिड बेस रेगुलेशन जो है वो डिसबैलेंस हो जाए तो क्या कॉज कर सकती है, एल्कलोसिस और एसिडोसिस। एल्कलोसिस होता है कि अगर जो बेस कंटेंट जो है वो पीएच जो है वो बेसिक कंटेंट में ज़्यादा हो गई है, 7 से इंक्रीज़ कर गई है तो वो एल्कलोसिस होगा। अगर जो पीएच है वो 7 से डिक्रीज़ कर गई है और हाइड्रोजन आयन कंसनट्रेशन इंक्रीज़ कर गई है तो वो एसिडोसिस होगा। इसको हम क्लासीफाई करते हैं एज रेस्पिरेटरी एसिडोसिस एंड रेस्पिरेटरी एल्कलोसिस, मेटाबॉलिक एसिडोसिस एंड मेटाबॉलिक एल्कलोसिस। एसिडोसिस एंड एल्कोलोसिस जो मैंने आपको पीछे बताया है, ये नॉर्मल ब्लड मेंटेन जो हम 7.35 to 7.45 होती है उसको नैरो रेंज में रखने के लिए होता है, ठीक है। टू इंश्योर द प्रॉपर फंक्शन ऑफ मेटाबॉलिक प्रोसेस एंड डिलीवरी ऑफ द राइट अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन टू टिश्यू। अगर हम बात कर रहे हैं बाइकार्बोनेट बफर की तो वो रेस्पिरेटरी से रिलेटेड होता है। अगर हम बात करें फॉस्फेट बफर की तो वो किडनी से रिलेटेड होता है, वो मेटाबॉलिक से रिलेटेड होता है। Normal body function and metabolism generate large quantities of acid that must be neutralized or eliminated to maintain blood pH balance. Most of the acid is carbonic acid, which is created from carbon dioxide and water. Carbon dioxide is produced as the body uses glucose, sugar, fat for energy. Lesser quantities of lactic acid, keto acids, and other organic acids are also produced. The lungs and kidneys are major organs involved in regulating blood pH. The lungs flush acid out of the body by exhaling carbon dioxide, raising and lowering the respiratory rate, alter the amount of carbon dioxide that is breathed out, and this can affect blood pH
within minutes. The kidney excrete acid in the urine and they regulate the concentration of bicarbonate ion in the blood. Acid-base changes due to increase or decrease in bicarbonate concentration occur more slowly than changes in carbon dioxide, taking hours or days. Both the processes are always at work and they keep the blood pH in the healthy people tightly controlled. The absolute quantity of acid or base are less important than the balance between the two and its effect on blood pH. Acidosis occurs when the blood pH falls below 7.35 and it can be due to increased acid or decreased base. Increased acid production within the body, consumption of substances that are metabolized to acid, decreased acid excretion, increased excretion of base. Alkalosis occur when blood pH rises above 7.45. It can be due to decreased acid or increased base. Electrolyte disturbance caused by, for example, prolonged vomiting or severe dehydration, administration or consumption of base, hyperventilation with increased excretion of acid in the form of carbon dioxide. Respiratory acidosis reduce carbon dioxide elimination, decrease breathing rate due to drugs or central nervous system disorders. These are the cause. Impaired breathing and lung movement due to trauma, abnormal presence air between lungs and the wall of chest. नीमोथोरैक्स में और रेस्पिरेटरी मैकेनिक्स जैसे कि ट्रॉमा के पेशेंट में हो सकता है रेस्पिरेटरी एसिडोसिस. इसके अलावा अगर कोई ड्रग या सेंट्रल नर्वस सिस्टम का डिसऑर्डर है. आगे रेस्पिरेटरी मसल नर्व मिस्थेजिया ग्रेविस, बोटुलिज्म, अमायोट्रोपिक लिथरल स्क्लेरोसिस, ये सब सिंड्रोम है जिनकी वजह से रेस्पिरेटरी एसिडोसिस हो सकता है. एयरवे ऑब्स्ट्रक्शन एंड लंग डिजीजेस. आगे रेस्पिरेटरी अल्कलोसिस क्यों हो सकता है? इंक्रीज कार्बन डाइऑक्साइड एलिमिनेशन होती है इसमें. hyperventilation due to anxiety, pain, shock, drugs such as early in overdose of aspirin, pneumonia, pulmonary congestion, exercise, fever, central nervous system trauma, tumor and infection जिसमें हमारे पास meningitis और इंसेफेलोपैथीज आती हैं. इसके अलावा लीवर फेलियर. इसके अलावा नेक्स्ट इज मेटाबॉलिक एसिडोसिस. इसमें डिक्रीज बाइकार्बोनेट आते हैं ड्यू टू इंक्रीज एसिड और लॉस ऑफ बाइकार्बोनेट. किन चीज़ों में होता है? अल्कोहलिक कीटो एसिडोसिस में, डायबिटिक कीटो एसिडोसिस में, किडनी फेलियर में, लैक्टिक एसिडोसिस में. अगर कोई टॉक्सिन कंज्यूम कर लिया है, गैस्ट्रोइंटेस्टिनल बाइकार्बोनेट लॉस में ड्यू टू डायरिया एंड रीनल बाइकार्बोनेट लॉस में. मेटाबॉलिक अल्कोलोसिस में क्या होता है कि बाइकार्बोनेट आयन इंक्रीज कर जाते हैं. डायूरेटिक्स में, प्रोलॉन्ग वॉमिटिंग में, सीवियर डिहाइड्रेशन में, डिजीज डेट कोज लॉस ऑफ पोटाशियम एंड इसके अलावा अगर आपने इंजेक्शन कर लिया कोई अल्कली. साइन एंड सिम्टम क्या है? माइल्ड एसिडोसिस में नॉट कोज एनी सिम्टम और इट मे बी एसोसिएटेड विद नॉन स्पेसिफिक सिम्टम्स सच एज फटीग, nausea and vomiting. Acute metabolic acidosis may also cause an increased rate and depth of breathing, confusion, headaches, and it can lead to seizure, coma, and sometimes death.